Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, Yes. sir. Sir. Afternoon, sir. सब कैमरा ऑन करो बेटा. Yes. This is something special, extra lecture. Okay, for your value addition. Yes. Okay. First of all, I would like to welcome the two person, the most important key person from Autodesk, who gave us their experience, and we will learn something for their expertise in Autodesk and Fusion 360. Okay, Azim sir. Good afternoon, Azim sir. Yes, sir. Yes, afternoon, sir. Good afternoon, Rajesh. Good afternoon, Tarun Kumar sir. Yes. Good afternoon, Ajin sir. Yes, sir. Yes, sir. Students, I would like to introduce Mr. Anand Puri, Education Account Manager, Autodesk India. He is a key person for this our education purpose to tie up with the colleges and basically from for our Gujarat. He has experience to work with NID, IITs, and now it is our fortunate that he is right now with us. Mr. Anand Puri, I would like to welcome you. And the another one, Mr. Rajesh Yadav. He is going to take all your lectures and give you a training about the Fusion 360. So, sir, Mr. Anand Pujari, I would like to welcome you and over to you, sir. If you give some words of wisdom from your side to our students. Thank you very much, sir. Thank you for inviting us to this wonderful session. I'll speak because I was given a thing that it is good to speak both in English as well as in Hindi. Yes, sir. बहुत सारे लोग हिंदी भी अच्छे खासे समझते हैं तो they would love to hear in हिंदी, तो मैं हिंदी में भी बोलूँगा आपको. स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है. मुझे पता नहीं कितने लोग आप ये पहली बार इस सेशन में हो या फिर आपको ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है. अगर जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुके हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप और कुछ ज़्यादा सीखो. जो नए हैं, मैं उनसे विनती करूँगा कि कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सीखिए कुछ नया चीज़ जो आपके प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा. एंड यहाँ पे अजिम सर है, तरुण सर है, ऐसे बहुत सारे सर है जो हमारे साथ जुड़ के ये फायदा स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं. इट इज़ बेटर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. So to start with, let me share my screen and I'll start with, I'm not sure, there could be many students. Just to motivate you, you see the design, how industry is adopting in their work. So let me share my screen. Where's an option? Am I made a presenter here? Tarun Kumar Patel sir is presenting. So I think, sir, you have to make me as a presenter to share my screen. हाँ जी तरुण सर, आपको आप स्टॉप करें शेयर स्क्रीन, देन ओनली आनंद सर कैन शेयर. Now you can present, sir. Thank you so much. My pleasure, sir. So I'll just go full screen this one. I'll just come back to my Google Meet. Yeah, present now. So I'll present entire screen. Let me see. Once you see that, please let me know. Hopefully you are able to see my screen. Yeah? Yes, sir. It's a visible. Okay, great. And let me know how do you see this video. Okay, and I'll just increase the volume as well a little bit high so that everybody can see. I'll just pause here. Was the audio clear? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Great. So enjoy this wonderful video and then we'll talk about it. My name's Neil Briggs. I'm co-founder and director of product development here at BAC. The business was founded in 2009.
Since then, we've delivered cars to over 41 territories around the globe. We've been on an incredible journey with our partners, suppliers, and of course our customers. It's inspired by a Formula-style layout. The engine is mounted longitudinally along the centre line of the vehicle, directly behind the driver, as is the drive line and the gearbox, which is then mounted further behind it. So the hard points of the car actually started to pretty much define themselves fairly easily from day one. We focus on clever use of materials. We focus on our processes and our clever use of the available softwares that we have to us in order to optimize the components on the car. A classic example of some of the innovation we've got here at BAC is our two-piece carbon hybrid wheel. So we've taken an alloy wheel, the lightest 17-inch alloy wheel in the world. We've made it 2 kilograms lighter. But we weren't content with that. We wanted to move that forward. And that's where we utilize generative design, work very closely with our friends and colleagues at Autodesk to basically apply the same load case to the same wheel to see where we can optimize the structure. And using the constraint system within the software, it meant that we could constrain the areas of the wheel that the designers were particularly protective about. And that then forced the software to look into specific areas to optimize the weight reduction. And I think the solution that we've come up with is absolutely incredible. We've saved an incredible 1.25 kilo just from the centerpiece alone. So we've moved this lightest wheel already further into just a completely different stratosphere. So the new Mono represents the next stage of our design DNA, described by Jeremy Clarkson as one of the most iconic shapes he's ever seen. The car never ceases to amaze me or anyone else who sees it, just how striking it is. And to move that design forward actually was a really tough challenge. The car has got this slightly more aggressive, lower, sleeker, longer stance, which is even more striking and looks incredible. All right, so that was one example. Hopefully, do you see my screen now? Yes. Yes, sir. Great. So hopefully you guys liked the video. Now, what really I want to highlight is BAC is a company which makes like a Formula One car kind of a thing. It's not a Formula car, but it's on the shape of that, and they were able to adopt Autodesk Fusion 360 technology called as generative design. We'll come to that part a little later. But what I understand from this program is that we are going to start with very, very basic, like about how we do the sketching, how do we do the drafting part of it, because aligning to your course. But what I really am showing is the product completely output. I mean, I'm going to the end of the story where you guys become an expert like this to come up with some different products in your lifespan of your academic activities. By the time you come to the end of your academic activities, I really want, like, if among the batch of like 100 people, if I get like 20-25 people becoming really an expert in certain domain areas, that is a very, very big win to Ajim sir, Tarun sir, myself, and Rajesh. So we are here to help you to go to that extent. We really want to see some of really good experts elevating to ambassadors. You become an ambassador, and ambassadors becoming, and some of the ambassadors can get an opportunity to become a catalyst, like an internship program with Autodesk. Anand sir. Yes, Anand sir. I'm sorry to interrupt you, sir. Sir, can you speak in Hindi, sir? Because most of our students are from Gujarati medium. ठीक है. So it will be comfortable for them. Definitely. Thank you, sir. Thanks for highlighting that. तो मैं क्या चाहता हूँ, I mean, हम क्या चाहते हैं कि जो आपने अभी वीडियो देखा, तो that is, मैंने जो बताया, it's a end product जो BAC यूज करता है. मतलब they have come up with a product जो हमारे टेक्नोलॉजी को यूज किया है. एक उनका जो फ्रेम था व्हील फ्रेम बनाने के लिए. तो आप जो करंटली स्लाइड देख रहे हैं, मैं उस स्लाइड पे आऊंगा. बट हम क्या चाहते हैं कि आप अभी शुरू कर रहे हो, जहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको बेसिक सिखाया जाएगा कि
कैसे ड्राफ्टिंग होता है, कैसे स्केचिंग होता है, जो आपके कोर्स को अलाइन होता है, जो ड्राफ्टिंग कोर्स है उसको अलाइन होके दिस सेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। बट मैं आपको बड़ा पिक्चर दिखा रहा हूँ जहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर 100 बच्चों में से अगर हमको एक 25 या 30 बच्चे भी मिल जाते हैं जहाँ पे कुछ अलग सा करना चाहते हैं, कुछ एक्सपर्टीज बनना चाहते हैं, समझो हम एक 15 एक्सपर्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे, हम एक 10 एम्बेसडर एक्सपर्टीज से एलिवेट करके एम्बेसडर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और एम्बेसडर्स में हम लोग एक या दो लोगों को कैटलिस्ट करके चुनेंगे। ये कैटलिस्ट क्या करेंगे, जो अभी राजेश सर या अजीम सर जहाँ पे एक्सपर्ट लेवल पे बैठ के जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं या फिर डिलीवर कर रहे हैं, हम ये कैटलिस्ट को ये प्रोग्राम देंगे ताकि वो अंडरस्टैंड, उनका प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ सके, उनका टेक्नोलॉजी स्किल बढ़ सके। तो ये कैटलिस्ट को ऑटोडेस्क एज अ इंटर्नशिप लेता है और उनको एक या दो लोग, वही लोग जो प्रोग्राम्स ड्राइव करेंगे अपने अपने कॉलेज में। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए डेफिनेटली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और उस एफर्ट डालने के लिए हम सब लोग हैं, तरुण सर है, अजीम सर है और हम लोग हैं। तो आपसे हमको सिर्फ यही उम्मीद है कि हम आपसे यही चाहते हैं कि आपका टाइम मिले और आपका एफर्ट मिले। बाकी आपको कैसे ग्रूम करना है, क्या करना है, मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। जैसे हमने अलग कॉलेजेस में ग्रूम किया तो उनका आउटपुट्स में बताऊंगा। और ऐसे अभी हर्ष प्रियांशु है जो हमारे कैटलिस्ट है, दयानंद सागर कॉलेज यूनिवर्सिटी का लड़का है, 6th सेमेस्टर में पढ़ रहा है, ही इज इंटर्नशिप विद अस। आप लिंक्डइन में जाके उसके काम देख सकते हो, अगर हो सके तो मैं आपको उसका काम भी बताऊंगा क्विकली, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो आज के लिए। तो ये जो डिजाइन्स है, जनरेटिव डिजाइन जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये हम लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिकॉज दिस इज द वर्ड ऑफ द जनरेटिव, मैं टेक्स्ट में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे एक सोशल हार्डवेयर एक कंपनी है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप हमेशा जब टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड कर लेते हो तो व्हाट इज नेक्स्ट, तो व्हाट इज नेक्स्ट इज नथिंग बट आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आपके स्कूल में हो, चाहे आपके मॉल में जाइए, कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे 2, 3, 4 बच्चे जुड़े जो ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे और अपने आप को ढाले उसमें और बोले कि चलो हम सब मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उसके लिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। चलो एक प्रधानमंत्री का एक कंपटीशन हो रहा है, मैकेथॉन हो रहा है, हैकाथॉन हो रहा है, अगर आप अभी से एक टीम फॉर्म कर लोगे तो जो भी नेशनल लेवल हो, जो भी स्टेट लेवल हो, और जो भी हम डिजाइन कंपटीशन ड्राइव करेंगे उसमें आप कोलैबोरेटिवली पार्टिसिपेट करते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर कोई टीम में ही रहे, अगर कोई इंडिविजुअल भी ऐसा कुछ अचीव करना चाहता है कि उसके पास कैपेसिटी है, इंडिविजुअली मैं ग्रो कर सकता हूँ, मेरे पास वो कैपेसिटी है, मेरे पास स्किल सेट्स है, वेरी गुड, ही कैन इंडिविजुअली कॉम्पीट आल्सो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी वांट समथिंग गुड स्टूडेंट्स, जहां पे हम लोग उनका प्रोफाइल कुछ अलग सा बना के दिखा। ऐसे नहीं चाहूंगा कि मैं ये मानता हूं कि 100 स्टूडेंट्स को हम टच बेस करेंगे, बट आप बोलिए 100 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो उसमें से हम लोग को किसी को नीचे जाना पड़ता है, किसी को ऊपर आना पड़ेगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि कितने आप हमको यूटिलाइज करोगे, कितने आप ऑटोडेस्क के टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करोगे, कितने आप हमको ग्रिल करोगे, तो उतना आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। तो आई डोंट नो हु विल बी दैट 30+ स्टूडेंट्स हु विल रियली यूटिलाइज, क्योंकि ऑटोडेस्क आपको टेक्नोलॉजी फ्री दे रहा है, आपको ट्रेनिंग फ्री दे रहा है, आपको सॉफ्टवेयर फ्री दे रहा है, और ऊपर से आपका अगर प्रोटोटाइप अच्छा रहेगा, आपका डिजाइन अच्छा रहेगा, तो वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम लोग आपको पैसे भी देंगे, यानी कि आपको वो स्पॉन्सर करेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में आए, या फिर उसका एटलीस्ट प्रोटोटाइप हो जो यहाँ पे हम जाके कुछ अच्छे से इवेंट्स में प्रेजेंट कर सके। तो ऐसे ही ये प्रोटोटाइप्स बन के आपको जो दिख रहा है स्क्रीन में ऐसे ही अलग अलग डिजाइन है। ये एक अलग डिजाइन है जहाँ पे इसका वीडियो आप देख सकते हो, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन दिस थिंग्स। ओके, एक मोटरसाइकिल वाज डिजाइन्ड बाय अ डिजाइनर, ओके, लाइटनिंग मोटरसाइकिल्स करके एक कंपनी है, उनकी इच्छा थी कि वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जो विच कैन कॉम्पिट टू दी रेगुलर काइंड ऑफ अ थिंग, रेगुलर काइंड ऑफ कन्वेंशनल मशीन्स जो है अभी जो चल रहे हैं मार्केट में,
बट इनका अलग सा था कि मैं बैटरी ऑपरेटेड ऐसा डिजाइन बनाऊं जहां पे मैं कन्वेंशनल मोटरसाइकिल्स को कॉम्पीट करूं और अच्छा परफॉर्मेंस दे, एंड ही इज एबल टू अचीव इट। एक स्मॉल गैरेज है, बस 10 से 12 लोग हैं इस कंपनी में, एंड दे वर एबल टू अचीव दिस रिजल्ट एंड विच इज कॉम्पिटिंग इन द मार्केट नाउ। ऐसे ही BAC आपने देख लिया अभी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट BAC। एंड ऐसे ही जो था कि किसी ने जापान में देखा कि ऐसा बनाया जाए जहां पे एक कंट्रोल्ड व्हील चेयर जो फिजिकली एबल्ड पीपल के लिए हेल्प हो, और उनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनिशियली उनका डिजाइन अलग था, देन उन्होंने सोचा कि अभी कैसे करे, जनरेटिव डिजाइन ऐड करे और व्हील्स बड़े थे छोटे करे, तो इस पे काम कर करके उन्होंने एक अभी ये मोड पे आया है, दे वर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप भी सोच सकते हो ऐसा कुछ मेडिकल रिलेटेड है या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड है या फिर ऑटोमोबाइल रिलेटेड है या फिर कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो आगे जाके आप एक बार टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद यू कैन अचीव दोज रिजल्ट्स। यहाँ पे एक फैंटास्टिक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। ये दयानंद सागर कॉलेज से मैं जब AEX ज्वाइन किया, मैं ऑटोडेस्क के साथ पिछले 18+ साल से हूँ और मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा हूँ। विद एजुकेशन मेरा ये थर्ड ईयर है एंड आई एम लविंग इट एक्चुअली। जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने इंडस्ट्री से लिया है, मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट से लिया है, ताकि मैं वो अभी जो मैंने देखा है कि प्रोग्राम कैसे होते हैं, डिजाइन्स कैसे होते हैं, और मेरे को मौका मिला है कि मैं अभी जो यंग जनरेशन्स के लिए इम्पार्ट करूं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो आप यहाँ पे देखते हो हमारा जो क्वाडकॉप्टर रहता है, नॉर्मली बहुत सारे लोग क्वाडकॉप्टर डिजाइन देखा रहेगा या फिर सुना रहेगा, तो अभी तो ये तो ट्रेंड चल रहा है बहुत सारा कि इसमें कॉम्पिटिशन्स भी बहुत होते हैं। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे सॉ द जनरेटिव डिजाइन की रेगुलर जो आप मेरा कर्सर मूव रहा है, दैट इज अ 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार फ्रेम रहता है, but after applying a generative design they were able to come up to a stage of this, जहाँ पे आप देख सकते हो ABS प्लास्टिक और मटेरियल लेने के बाद पहले का जो इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स था 424 ग्राम्स था, बाद में जब जनरेटिव डिजाइन अप्लाई किया तो इट वाज 180 ग्राम्स, एंड यू कैन लुक एट द वेट रिडक्शन। So it's not only weight reduction is not the criteria of generative design, but optimization, shape optimization is alag, but generative design is alag, don't get confused। तो कैसे उन्होंने अचीव किया, एंड फाइनली जब उन्होंने रिजल्ट्स हमको दिखाया तो हमने इस प्रोडक्ट को हमने प्रैक्टिकल में बदल दिया। तो वी अप्लाइड, वी 3D प्रिंटेड दिस कंपोनेंट यूजिंग नायलॉन मटेरियल, 4 डिफरेंट वेरिएशंस हमने प्रिंट किया, उसमें से 2 आप देख रहे हो यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने असेंबल किया, एंड वी वर एबल टू फ्लाई दिस। आई हैव अ फ्लाइंग वीडियो आल्सो, एंड दिस वाज आल्सो शोकेस्ड। इसको हमने ऑटोडेस्क यूनिवर्सिटी में भी शो किया, जहाँ पे बेंगलोर, मेनी वेर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट एंड स्टूडेंट्स वेर लाइक हैप्पी टू प्रेजेंट दिस। उनका खुद का काम था ना, दे वेर हैप्पी टू शोकेस दोज वर्क। सो ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। यहाँ पे जो आपने बंदा आप देखते हो कि जो लेफ्ट साइड में जो डिजाइन है, इट इज अ डिजाइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट कि डिजाइन क्या होता है। तो बट दिस गाय हैज वन विथ हिज ओन डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक बंदा, वो खुद 3-4 डिजाइन कंपटीशन में अपना डिजाइन्स बता के ही हैज वन द कॉम्पिटिशंस। बट हमने जब उनका देखा कि मैंने बोला कि अरे यार ये बंदा तो अच्छा काम किया है, लेकिन इसका जो डिजाइन है इट इज नॉट गुड। सो जो आपने देखा कि क्वाडकॉप्टर का टीम था, उसी में से एक बंदे ने निकाल के, मैंने मैकेनिकल को लेके, देन इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, और एक बैटरी पैक स्टूडेंट्स को लेके, और एक 2 मैकेनिकल न्यू स्टूडेंट्स को लेके, तो हमने इस डिजाइन जो उसने PVC पाइप यूज करके, यू कैन सी द क्लस्टर ऑफ द डिजाइन हियर यहाँ पे, तो हमने उस डिजाइन को जनरेटिव डिजाइन अप्लाई करके, देन हमारा ही एक सॉकेट बना के, दिस इज व्हाट यू सी द आउटपुट इन फ्यूजन। सो दिस इज अ रेंडर्ड इमेज एंड दिस इज एन एक्चुअल इमेज। तो हमने उसको, ये जो डिजाइन आप लेफ्ट साइड देखो, इसको इस तरह से ट्रांसफर करके, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, एंड देन फाइनली वी केम अप विद दिस प्रोडक्ट। And this is an actual project which was showcased in multiple events, and it is absolutely working fine exactly। And you can see from this जो उसने बनाया था, उससे ये कितना क्लस्टर और कितना ये है, and that design transformation हमने किया। तो we were happy, students were very happy, and now they have also presented this paper in international forum, and all these through students are now placed, and the guy who is the owner, I mean the main guy of electronics, he's applied his for master degrees through this, and he is very happy ki because of this I am able to apply to my masters in US, and he's been selected for a couple of universities as well। So ऐसे एक industry collaborated भी है, जहाँ पे actually
फिएट क्रिसलर, अभी ये जो आप देख रहे हो जो येलो और ग्रीन कलर का है, इट इज अंडर एक्सपेरिमेंट विद फिएट क्रिसलर। जो पुराना डिजाइन था, करंट डिजाइन उनका है, और जो नया डिजाइन है, एंड इट इज अंडर एक्सपेरिमेंट नाउ। अगर ये क्रिसलर ग्रीन सिग्नल देता है तो दिस विल गो इनटू मास प्रोडक्शन। सो यू कैन इमेजिन दैट industry also is using such technology. So what I'm trying to say is work with this technology, which is a one integrated platform. I'm not saying it is a product, it is a platform to perform all your CAD, CAM and CAE under one go, under one platform. You will be able to, आप सीख सकते हो कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे इंजीनियरिंग किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है डिजाइन में, और कैसे मैन्युफैक्चर भी किया जाता है। तो ऐसे आपको एक मशीन से दूसरे मशीन में हॉप करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट यूज वन टेक्नोलॉजी टू कम अप विद अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स, ओके। एंड इट इज अ कोलैबोरेटिव टूल। द डेटा सिट्स इन द क्लाउड। आपका जो डेटा है वो क्लाउड में है, और कोई भी मशीन में आप जस्ट आपके जैसे याहू या जीमेल अकाउंट में लॉगिन करते हो, वैसे लॉगिन करके आप, इट्स अ वेरी स्मॉल यूटिलिटी, कैन बी इंस्टॉल्ड इन एनी मशीन, एंड वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हो, बट दैट्स जस्ट अ व्यूअर। तो जहाँ पे आपको अगर कुछ कमेंट करना है, कुछ आपको बोलना है कि हे भाई ये डिजाइन ठीक तरह से नहीं है, आप थोड़ा इसमें चेंजेस करो, उसमें तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज this tool will allow you to access your design on any kind of a medium which can access the internet. So that is the power of, and gone are the days जैसे कि मैं silos में engineering में अपना designs करता हूँ या करता हूँ। It is an era of collaboration. You have to collaboratively work with multiple peoples to make your product more stringent and more productive to come into the market. तो इसके साथ मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं नॉट श्योर इफ आई हैव दोस डाउनलोडेड। Hopefully I have those pictures. Yeah, fantastic. Okay, I'll just open this. I don't know if I have his or PPT design showcase. Okay, I think I have his PPT. Okay. So here is the guy. This is the guy who is our catalyst now. Last catalyst was Siddeshwar, fantastic guy from a tier 2 city, Sholapur region. Okay, very good designer. You can see his work also in this thing. But this is our current catalyst, who is from Dayanand Sagar College. So look at that guy's work. Okay, amazingly done using Fusion 360. He's an aeronautical student, so more interested in the aerospace industry. So this is his work from Fusion. And rendered images. So he's taking now sessions. He's a catalyst. He's just taking sessions. So we have offloaded Rajesh. Rajesh is not doing sessions for Dayanand Sagar College, and this is the guy. So likewise, we want you to come to a stage where when you are in 4th semester or something, we would love to see your designs coming in. So if we find students like this, we will make him as a catalyst, and then we will showcase, we will ask him to drive the sessions that today what Rajesh sir is doing. So this is the locomotive, what he has done. Fantastically done. I love this guy. You can see this guy's work in the LinkedIn as well. All right, so with that, I just stop it. I'm back to the meeting. I'll give you 2 more minutes if anybody has a question. So I'll stop sharing, and this is what we expect from the region of Ahmedabad as well, where we have fantastic faculties with you. Ajim sir is very, for the last, my understanding goes, I'm in the system, so I'll just take 3 years. For the last 3 years, he's extensively working with us. He's trying to make sure that whatever Autodesk technologies are there, and he's trying to bring it to your platform. आप समझ सकते हो कि ये सेशंस करवाने के लिए उनको कितना सारा बैकग्राउंड काम करना पड़ता है। उनको हमारे साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, राजेश सर के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, कंटेंट को डेवलप करना पड़ता है, और उसके पीछे एफर्ट डालना पड़ता है। आपके टाइमिंग्स देखने पड़ते हैं कि कौन से टाइमिंग आपको सूट होते हैं, तो उसके हिसाब से ये सब करके फिर ब्रोशर बनाना पड़ता है, फिर आपके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना सारा एफर्ट जाता है उनका। एंड दिस इज, ये उनके खुद के एकेडमिक
कि जो उनके जो क्लासेस रहते हैं रेगुलर क्लासेस, बिकॉज दे हैव टू शो टू देयर मैनेजमेंट, उनके मैनेजमेंट को दिखाना पड़ता है कि उनके जो रेगुलर क्लासेस है वो तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स अलग से क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री से कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये आपके स्टेप्स तक, आपके डोर तक, आपके दरवाजे तक लेके आते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका पूरा यूटिलाइज किया जाए, और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा सा डिज़ाइन कंपटीशन हम लॉन्च करें, अच्छा खासा प्राइज मनी दे और अच्छे डिज़ाइंस आए। अगर वो अच्छे डिज़ाइंस मिलते हैं हमको तो उसको हम प्रोटोटाइप भी करेंगे, जैसे आपने देखा प्रोटोटाइप, तो उसके लिए भी हम फंडिंग करेंगे। तो देखिए आप, अभी आप पे निर्भर करता है कि कितना सारा आप पॉजिटिवली हमारे पास आएंगे, उतने सारे हम आपको ऑप्शंस देते जाएंगे। तो अभी हमारा इरादा है कि चाहे अभी हम देखते हैं यहाँ पे 51 अटेंडीज हैं, हम चाहते हैं कि ये 100 तक जाए। इस 100 में से हमको एक 30 लोगों को चुनना है, जहाँ से हम चाहते हैं कि एक 15 लोग एक्सपर्ट बने। देन हम चाहते हैं कि एक 10 लोग एम्बेसडर लेवल पे, देयर इज एन एम्बेसडर प्रोग्राम, वी विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट एम्बेसडर प्रोग्राम। और उसमें से हम लोग चाहते हैं कि एक 5 लोग कैटलिस्ट में आ जाए, और उस 5 में से हम 1 या 2 को कैटलिस्ट चुने और उनको एज एन इंटर्नशिप ले ऑटोडेस्क में, और उनको पे करे 6 महीने के लिए, और वो लोग अपना 6 महीने का प्रोग्राम प्लान करके एग्जीक्यूट करें। सो दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू डू। ऐसे नहीं है, हमारे जीटीयू में DIC है, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, उसके थ्रू हम एक बिग डिजाइन कंपटीशन प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं। तो it is all left to you. So I think I've taken more than what the given time, because I felt that looking at the crowd, and thank you Tarun sir, thank you Prajesh and Jim sir to bring us to this forum and giving me an opportunity to talk to these students. So हम लोग हैं यहाँ पे, तो utilize as much as you can. So with that, thank you so much Tarun sir, over to you. Thank you so much Anand sir for your wonderful words and for inspiration and motivation. तो हमारा जो रिश्ता है ऑटोडेस्क के साथ बहुत ही पुराना है। लास्ट 2 साल पहले हमने बहुत गुजरात की सबसे बड़ी मीटअप की थी विथ ऑटोडेस्क। वरुण हेता सर यहाँ पे आए थे, बद्री सर आए थे। उसके बाद लास्ट ईयर सितंबर में हम लोगों ने ऑनलाइन ही पूरा एक कॉविक्स करके एक कंपटीशन रखा था। तो उसमें भी ऑटोडेस्क ने बहुत ही हमको पूरा ट्रेनिंग दिया। राजेश सर थे यहाँ पे, उन्होंने ट्रेनिंग दिया। उसके बाद में जो भी सिलेक्ट हुए, जो मास्क बनाया था, वेंटिलेटर बनाया था, रोबोट बनाया था, उसको अच्छी डिजाइन पे क्राइटेरिया पे उन्होंने जज किया, और जो बेस्ट डिजाइन थे उसको पर हमको किट भी दिया और प्राइजेस बहुत सारे दिए। आप लोगों ने सुना होगा ये सब चीज। तो अजीम सर ने बैकबोन है ये पूरी सिस्टम का, अजीम सर बैकबोन है फॉर अवर LJ। अगर मैं बात करूँ तो मैं तो खाली यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन असली काम तो अजीम सर ही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आपको भी ऐसा एडवांटेज लेना है, आपको भी कुछ सीखना है, क्योंकि मार्केट में अभी सब डिजाइन पे ही चल रहा है। जैसे कि सर ने भी सब आपको सबको दिखाया, आप सभी ये सब देखते रहते हैं अभी, ठीक है ना। डिस्कवरी सभी जहाँ पे नए नए बाइक्स आते हैं, एरोडायनामिक डिजाइन आती है, तो आप भी ये खुद बना पाओ अपने हिसाब से। तो इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम ऑटोडेस्क का धन्यवाद करते हैं, आनंद सर का धन्यवाद करते हैं, राजेश सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, और विदाउट एनी बेनिफिट, उनको कोई बेनिफिट नहीं है, फिर भी वो हमारे टाइम निकाल के हमको सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या है, वैल्यू एडिशन करना है अपने करियर के अंदर, तो आपको मन लगा के सीखना है, ठीक है। ओवर टू यू राजेश सर, इफ यू वांट टू से समथिंग। Thank you Tarun sir, thank you Anand sir, thank you Anand sir. One more correction sir, the account is representable as Tarun sir, but my name is Jignesh Chadbar. Okay, okay, no problem. It's Thank a you. common account, that is why the communication error is there. My name is Jignesh Chadbar sir. Okay sir. No problem. Sorry Jignesh ji. No issue sir, no issue. It's my problem at all, because we are using a common account for lectures and all that. That's why sir. Okay. So thank you, first of all, thank you very much Azim sir, because from the last 1 week, पिछले 1 हफ्ते से हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। We are mapping the syllabus, trying to collect the content part, exercises कि हमें क्या कराना चाहिए। And then thank you so much Anand sir for giving us this wonderful opportunity for all the students कि ये लोग no doubt अभी initial phase है, they will start with the technology, but I am pretty much sure कि after some time, definitely some of my students will definitely do wonderful designs with this technology. So as we already know that this entire training schedule is aligned, ये mechanical drafting subject के साथ aligned, right Azim sir?
Yes, sir. Yes, sir. यस और ये सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी बहुत नए होंगे इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन. Second semester. सेकंड सेमेस्टर, यस करेक्ट. Yes. डिजाइन अभी शुरू ही करना है, तो दिस इज द राइट टाइम जब आप अपने देखने का और सोचने का नजरिया चेंज कर. बिकॉज डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को देख कैसे रहे. अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो हम लोग इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड्स डिफरेंट, कि हमें कैसे देखना है, प्रोजेक्शंस कैसे लेने हैं, हमें उसे ड्रॉ कैसे करना है, वो सारी चीजें. डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स आएंगे बाद में, बट अभी हम फोकस करेंगे. आज का जो मेरा एजेंडा है वो हमारा फोकस करेंगे हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरे बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा एजुकेशन अकाउंट. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है कि आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो अपना एजुकेशन लाइसेंस या नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, आप आजिम सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी नीड टू हैव दिस टेक्नोलॉजी ताकि हम इसे अच्छे से यूज कर पाए. आप सब लोगों के पास सॉफ्टवेयर होगा, इंस्टॉल होगा. So let me start sharing my presentation. Jignesh sir or Rajim sir or Rajesh, sorry to cut you down. You guys have to excuse me. I have No problem, sir. No problem. As I told you. Sorry guys. Students, मेरे शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, हम आपके साथ है. So ज़्यादा तो ज़्यादा समझ लीजिए. Give your time. Again, I tell you, what we really need is आपका समय और आपका डेडिकेशन. बस ये दो चीज अगर हमको मिलते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आप 2 साल में और 1 साल में और 2 साल में आपका जो सोच है, आपका जो थॉट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, हम पक्का यू विल कम बैक टू मी. आई टेल यू, आई बेट यू विल कम बैक टू मी, सर गिव मी सम अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एंड आई विल टेल यू विल डू वंडर्स. आप अभी सिद्धेश्वर मडोले उनका जो टीम है, they are doing some fantastic project on Asan which is patented. There's another guys who are doing some very good project. We are supporting those projects. Hopefully अगर 1 साल में उनको, because of pandemic we lost a lot of things, but मैं चाहता हूँ कि ये बैच में भी ऐसे कुछ निकले जहाँ पे हमको प्राउड फील कर सके और हम सपोर्ट कर सके कि कुछ अलग सा बना के दिखाएंगे. So wishing you all the best. I have to go for some other meetings. Sorry, and thanks for the opportunity. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Jignesh sir, can you please stop sharing ताकि मैं अपना PPT शेयर करूं. Yes, sir. हो गया sir. आप देख पा रहे हैं? Yes, sir. Right. So let me start with the agenda, actual agenda. हमने डिस्कस कर लिया सारा ब्रॉडर एंगल क्या है फ्यूजन का, और आप इस चीज को कहाँ तक लेके जा सकते हो, आप इससे कैसे कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं with different programs with this technology. So I am Rajesh Yadav. I am working as an education engagement specialist, and my area of working is the entire Gujarat. I am taking care of IIT Gandhinagar and IIT both the campuses and the GTU affiliated colleges. Right? पिछले 1 साल से मैं ऑलरेडी एलजी कॉलेज के साथ काम कर रहा हूँ. इनफैक्ट आजिम सर के साथ काम कर रहा हूँ. आजिम सर has supported me a lot to do different type of activities in the college or design competition. Now coming to the main part, that is called Fusion. What actually is this Fusion, Autodesk Fusion 360 is? Because अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, आपने बहुत सारे, हो सकता है कि कई सारे डिफरेंट नाम सुने हो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के. Then why this software is different from the others, और आपको क्यों यूज करना चाहिए. Now I have only one request. मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स. आपको कभी भी लगता है कि कुछ डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनीथिंग, you are most welcome to ask. आप पूछ सकते हैं, राइट. सॉफ्टवेयर्स के कंपैरिजन हो, मॉड्यूल के कंपैरिजन हो, टूल्स नहीं समझ में आ रहा है, इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या है, वो सारी चीजें कभी. लेट्स इंटेंशन सिर्फ इतना है कि इस पर्टिकुलर जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा 2-3 हफ्ते चलने वाला है,
इसे हमें इंटरेक्टिव रखना है ताकि आफ्टर दिस ट्रेनिंग शेड्यूल आप फुल्ली प्रिपेयर हो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने। Am I correct? Now this is the single line definition of fusion. एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना पूरा डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि डिजाइन प्रोसेस क्या है, डिजाइन कैसे कंप्लीट हो रही है। तो अगर डिजाइन प्रोसेस को मैं सिंपल स्टेप्स में समझाऊं तो डिजाइन सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका स्केचिंग से। आप सबसे पहले आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्चुअलाइज्ड स्टेट, कि जहां पे आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि यस मुझे ये चीज बनानी है। बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले आप उसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ऑन ए पेपर शीट, जो हम टेक्निकल लोग जिसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग। आप लोग इसीलिए ये सब्जेक्ट कॉमन है एंड सभी टेक्निकल लोगों को ये इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, वेदर मैनुअल हो सकती है या फिर किसी ना किसी सॉफ्टवेयर। जब हम स्केच बना के रेडी हैं, देन स्केच क्यों इंपॉर्टेंट है? स्केच इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्केच जब हम बनाते हैं तो हमें एक्चुअल डायमेंशंस पता होते हैं। आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो, आप बाइक बना रहे हो, कार बना रहे हो या कुछ भी कंपोनेंट बना रहे हो, तो आपको उसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, वो कहाँ से बेंड हो सकता है, कहाँ पे हमें बाकी के अरेंजमेंट्स देने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ड्राफ्टिंग, स्केचिंग जिसे बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, अदरवाइज टेक्निकली हम उसे ड्राफ्टिंग। जो सब्जेक्ट आप अभी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हमारे पास ड्राफ्टिंग शीट होनी ही चाहिए। बिना ड्राफ्टिंग शीट के मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं। और उसके स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। अभी मेरा सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है, पहला स्टेप होता है आपका स्केचिंग और ड्राफ्टिंग। देन सेकंड स्टेप होता है आपका उन डायमेंशंस को मर्ज करते हुए आप उसका एक छोटा सा 3D मॉडल बनाते हैं। आप उसे डिजिटल प्रोटोटाइपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि अब हमें फिजिकली बनाने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स हम वो बना सकते हैं और स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो पूरा मॉडल मेरा कैसे दिखेगा। जैसे अभी आनंद सर ने पूरा दिखाया था एरोप्लेन्स और वो पूरा लोकोमोटिव, वो सारे के सारे मॉडल्स प्रोटोटाइप्स डिजिटली प्रोटोटाइप हैं, फ्यूजन पे ही बने हुए। आपने जब वो मॉडल बना लिया, तब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ओके आपने सोचा, आइडिया था आपके दिमाग में, आपने उसके डायमेंशंस कैलकुलेट किए और इन डायमेंशंस की हेल्प से आपने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लिया। नाउ द पॉइंट इज कमिंग कि अब आपने जो डिजाइन किया है आपको वो चेक भी तो करना पड़ेगा कि आपने जिस पर्पस के लिए वो डिजाइन बनाया है वो उस पर काम करेगा या नहीं। वो आता है आपका सिमुलेशन में, जहां पे हम उसकी एनालिसिस करते हैं। यू कैन सी माय स्क्रीन, ऑल दीज आर डिफरेंट मॉड्यूल्स इन फ्यूजन। आप कह सकते हो फ्यूजन के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं कि अगर आपको केबल डिजाइन करना है आप डिजाइन पे काम कर सकते हैं, आपको 3D मॉडल बनाना है आप 3D मॉडल पे काम कर सकते हैं, आपको एनालिसिस टेस्टिंग करनी है आप सिमुलेशन पे काम कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी डिजाइन करना है आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, सारे के सारे अवेलेबल है आपके एजुकेशन लाइसेंस में। मैं आपको बताऊंगा जब यूजर इंटरफेस समझाऊंगा कि ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी। तो एक अकेला ऐसा सिंगल सॉफ्टवेयर जहां पे आप पूरा डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्केचिंग, मॉडलिंग, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग और सिमुलेशंस, एवरीथिंग, राइट? एंड इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ ऑटोडेस्क पे एक अकाउंट बनाना है एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अकाउंट आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के बन चुके हैं, आप लोग यूज भी कर रहे हो, तो यू कैन इमेजिन कि हाउ इजी इट इज। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सर मैंने आपको बताया फ्यूजन डिजाइन वर्कस्पेस, डिफरेंट चीजें क्या है। स्केचिंग, मॉडलिंग, असेंबली, ड्राइंग व्यूज, ये सारे के सारे कैड डिपार्टमेंट में आते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। सिमुलेशन आता है आपका कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में, एंड कैम आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी इस सब्जेक्ट जो हम अभी सब्जेक्ट के साथ अलाइन करेंगे मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के साथ, इसमें हम फोकस करेंगे कैड पोर्शन पे कि आप स्केच कैसे बनाओगे, 2D स्केच और 3D स्केच, आप मॉडल कैसे बनाएंगे, आप उन
डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल कैसे करेंगे, और फिर आप उनकी ड्राइंग शीट कैसे जनरेट करेंगे विद ऑल दी डायमेंशंस, राइट। तो अभी इस सब्जेक्ट के पर्पस के लिए वी विल बी वर्किंग ऑन दीज 4 मॉड्यूल्स: स्केचिंग, मॉडलिंग, असेंबली एंड ड्राइंग व्यूज, राइट। Okay, let's move to the next slide. Day 1. Okay. Before going to the day 1, right? आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने प्रोजेक्शन मेथड्स पढ़े होंगे। जब मैं पहले स्टेप की बात कर रहा हूँ जहां आपको स्केच बनाना है, स्केच बनाने के लिए हमें अपने मशीन कंपोनेंट को या फिर जो भी चीज आप बना रहे हो उसे देखने का हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। टेक्निकली अगर मैं बोलूं, राइट, उन मेथड से हम कैसे प्रोजेक्शंस ले रहे हैं और हम कैसे उसका एक्चुअल डायमेंशंस निकाल रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद, इट्स अ स्मॉल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट अगर ये हमें क्लियर हो जाएगा देन इट बिकम्स वेरी इजी कि आप डिजाइन में ओवरऑल कैसे काम करें। सो आई एम स्किपिंग दिस डे 1 एजेंडा। फर्स्ट slide is this is theoretical topic, I can understand, but ये हमें समझना बहुत important अगर आप डिजाइन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, राइट। सो देयर आर 2 प्रोजेक्शन मेथड्स, 2 प्रोजेक्शन मेथड्स हम फॉलो करते हैं। पहला होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और दूसरा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। आप देख सकते हो मैंने इस पूरे पेज को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, second, third and fourth one. First angle projection method and third angle projection. First angle projection method में क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, then we will try to see from different direction कि हमें कहां से देखना है और हमें उसके डिफरेंट व्यूज क्या मिलेंगे। थर्ड एंगल में हम अपने ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट पे रखते हैं। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मेथड हम नहीं यूज करते डिजाइन में, कोई यूज नहीं करता। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, आई विल टेल यू, राइट। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप चाहते हैं कि मैं वो चीज दोबारा बताऊं, प्लीज लेट मी नो। सो फर्स्ट हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा कि हम पॉइंट की डिस्टेंस, पॉइंट के प्रोजेक्शंस कैसे लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप देख सकते हो रेड कलर में लिखा हुआ है FRP/VP। FRP मींस फ्रंट रेफरेंस प्लेन और वर्टिकल प्लेन। सिमिलरली HRP मींस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन और हॉरिजॉन्टल। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरा एक पॉइंट है A जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से 10 mm ऊपर है और दूसरा ये जो A पॉइंट है ये 15 mm वर्टिकल प्लेन से सामने है। मेरा ये पॉइंट किसी भी प्लेन पे नहीं है, मेरा एक पॉइंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं एक ऐसी पोजीशन पे है जो 10 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और 15 mm फ्रंट प्लेन से सामने है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेथड से हम इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे फ्रॉम रेफरेंस लाइन दैट इज कॉल्ड XY। अब इसे देखने का तरीका समझिए। ये पॉइंट हमारा लोकेट है यहाँ पे, हमें ये पता है 10 mm फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। राइट हैंड साइड I have captured one eye. You can see this is the direction of front view. आप जब इस डायरेक्शन से देखते हैं तो देखिए इसका फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन हमें मिलता है AF वर्टिकल प्लेन पे, राइट। सिमिलरली टॉप आई को अगर आप देखें तो हम ऊपर से जब देखते हैं तो हमें इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्शन मिलता है AH। पॉइंट एक है बट सिंस मेरे दोनों के दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो मैं जब 2 डायरेक्शन से देख रहा हूं तो मेरे दोनों प्लेन्स पे उसका प्रोजेक्शन मुझे दिख रहा है। आपको ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। तो जब आप देख रहे हो तो इस पॉइंट के 2 प्रोजेक्शन मुझे मिल रहे हैं, एक AH है और एक AF है। AF इज नथिंग बट वर्टिकल प्लेन,
AH is nothing but horizontal plane, राइट? लेकिन अब हम अपने पेपर शीट को 90 डिग्री एंगल पे तो रख नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, जस्ट टू रिप्रेजेंट इसका प्रोजेक्शन दोनों पॉइंट्स पे। मैंने जैसे ही इस प्लेन को 90 डिग्री रोटेट किया तो ये वर्टिकल डाउन हो गया, और आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में इसका आंसर लिखा हुआ है। AF is nothing but 10 mm and AH is 15 mm below the reference line. तो अगर पॉइंट के प्रोजेक्शन लेने होते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से, इससे हमारी क्या समरी निकलती है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो आपका फ्रंट व्यू है वो हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है, और जो टॉप व्यू है वो हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे आता है। क्यों आ रहा है नीचे? बिकॉज रेफरेंस लाइन है ये एक्स और वाई, और जब इस पर्टिकुलर प्लेन को आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रेफरेंस लाइन के नीचे चला जाएगा। गॉट इट? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो द समरी ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ये कहती है कि जब भी आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से कोई चीज ड्रॉ करते हो, प्रोजेक्शंस लेते हो, स्पेशली फ्रंट और टॉप, तो फ्रंट व्यू हमेशा आपके रेफरेंस लाइन से ऊपर रहता है और टॉप व्यू उसके नीचे आता है रेफरेंस प्लेन के। ठीक है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हुआ। लेट मी मूव टू द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। नाउ सी, in third angle what I have done, just a second, can you see my screen? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Right. थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट A 15 mm वर्टिकल प्लेन के पीछे है और 10 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है। ये देखो, ये पॉइंट A दिख रहा है। अब इसका जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे, सेम फ्रंट व्यू देख रहे हो तो AF हमारा फ्रंट व्यू यहाँ आ रहा है वर्टिकल प्लेन पे, और टॉप व्यू हमारा AH आ रहा है हॉरिजॉन्टल पे। अगेन जैसे मैंने आपको पहले वाले मेथड में बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है, पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसे 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। दिस एरो यू कैन सी, जैसे ही मैं इसे रोटेट करूंगा तो यू विल गेट दिस आंसर। ये देखो, नाउ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या हो रहा है कि जो हमारा टॉप व्यू है वो अबव द रेफरेंस लाइन हो रहा है और फ्रंट व्यू हमारा बिलो द रेफरेंस प्लेन हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. Yes, sir. first quadrant और first angle projection method and third angle projection method का बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों में जो व्यूज हैं वो हमें रिवर्स ऑर्डर में मिलते हैं, उल्टे मिलते हैं। मतलब फर्स्ट एंगल में अगर जो वहां पे फ्रंट मिल रहा है वहां थर्ड एंगल में टॉप मिलेगा। ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं। नाउ अब आप में से कोई एक समझा सकता है कि सेकंड और फोर्थ प्रोजेक्शन मेथड क्यों नहीं यूज करते? एनी गेस? सर अगर 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो दोनों सेम ही होंगे। 90 डिग्री पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जब हम रोटेट करेंगे तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन ओवरलैप हो जाएगा। यस, तो हमारे दोनों के दोनों जो व्यू हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, दोनों मर्ज हो जाएंगे और उस केस में ड्राइंग पढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हमें दोनों व्यूज अलग अलग चाहिए। राइट? यही आप कहना चाह रहे हो? यस सर। यस, करेक्ट। कितने लोग हैं जिन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं, जिन्हें जो ये देख पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में? किसी को भी कुछ डाउट है इसमें? Anyone? કોઈ પણ No, sir. કોઈ પણ doubt હોય તો તમે વચ્ચે પૂછી શકો છો. No, sir. राइट, बिकॉज इस अभी तो बहुत सिंपल वाला मैंने सिर्फ पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया है। पॉइंट के प्रोजेक्शन में आपको कुछ नहीं, सिर्फ लोकेशन ऑफ पॉइंट आपको चेंज होता है और वो एक डिस्टेंस में पता लग जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज नथिंग बट द
प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, फिर उसके बाद आप सॉलिड्स और वो सारी चीजें करेंगे। अगर मैं लाइन की बात कर रहा हूं तो लाइन के डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट तो सिर्फ एक पॉइंट है, कहीं प्लेस कर दो, बट लाइन क्या है कि दो पॉइंट्स को कनेक्शन करता हुआ है एक आपके पास एंटिटी है, वो आप कैसे भी प्लेस करोगे तो उसकी जो ट्रू लेंथ है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। और प्रोजेक्शन में हमें यही ट्रू लेंथ और एपरेंट लेंथ ही कैलकुलेट करनी होती है। कोई ऑब्जेक्ट आपको तिरछा दिख रहा है तो ऑफ कोर्स, जैसे आपने देखा है कि मेथड्स की अगर मैं बात करूं, व्यूज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे टेक्निकल में ऑर्थोग्राफिक व्यूज होते हैं और आइसोमेट्रिक व्यूज। ऑर्थोग्राफिक व्यूज में जो भी डायमेंशंस होती हैं वो हमारी ट्रू लेंथ होती है, वो एक्चुअल डायमेंशंस हैं। बट जबकि आइसोमेट्रिक में हमारी एपरेंट लेंथ्स होती है, वो हमारी ट्रू लेंथ्स नहीं होती। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि हमारी पोजीशंस क्या है लाइन की और हम इन्हें कैसे देख रहे हैं, ताकि हमें डिफरेंट लेंथ्स मिल पाए। लाइन के केस में जो सबसे पहला केस बनता है कि एक ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के पैरेलल है, ए और बी, ये बीच में कहीं, और ये पूरा का पूरा जो लाइन के डिफरेंट केसेस में ले रहा हूँ, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ही पढ़ा रहा हूँ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना, राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख सकते हो, एक लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों से पैरेलल है। नाउ यू कैन सी द फ्रंट व्यू। ए का प्रोजेक्शन AF मिल रहा है फ्रंट प्लेन पे, बी का प्रोजेक्शन BF मिल रहा है फ्रंट प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, और टॉप व्यू में हमें BH और AH मिल रहा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बिकॉज ये लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे के पैरेलल है, तो एट एनी कॉस्ट जो हमें आंसर मिलेगा, यू कैन सी दिस वन, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही ट्रू लेंथ होंगे, क्योंकि लाइन कहीं से भी इंक्लाइंड और किसी भी प्लेन से कोई भी एंगल नहीं बना रही, वो बस पैरेलल है दोनों के प्लेन, दोनों वर्टिकल प्लेन से भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो यू कैन सी द आंसर इन द राइट हैंड साइड कॉर्नर, जहां पे आपको व्हाइट कलर की लाइंस दिख रही है, ये इस लाइन के प्रोजेक्शन है। ये जो रेड लाइन है ये आपका, सिंस हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हमारा फ्रंट व्यू है एंड देन टॉप व्यू हमारा नीचे। I hope it is clear. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Anytime आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Let's move to the next case. लाइन, सेकेंड लाइन का केस क्या कह रहा है? लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन बट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। अब आप इसे विजुलाइज करने की कोशिश करो। ए बी हमारी लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो पैरेलल है बट वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर होगी तो हमें प्रोजेक्शन में क्या मिलेगा? सिर्फ एक पॉइंट। जो पैरेलल है वहां तो हमारी पूरी लेंथ दिख रही है मुझे, तो ट्रू लेंथ होगी। बट फ्रंट व्यू में आप देखो, ये ए और बी लाइन, ये फ्रंट व्यू हमारा डायरेक्शन है। ए और बी जब हम फ्रंट से देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे और यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा केवल, जिसे इन्होंने AF BF के नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ। बिकॉज ये केस ही दूसरा है। यहाँ पे जो लाइन है वो पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो है बट वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो देखो, ये आंसर में राइट हैंड साइड में आपको जो फ्रंट व्यू मिल रहा है दैट इज ओनली ए सिंगल पॉइंट, और जो टॉप व्यू मिल रहा है वो पूरी की पूरी लेंथ, ट्रू लेंथ। इज इट क्लियर? आप इसे देख पा रहे हो? विजुलाइज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's good. Let's move to the next case. Type 3. लाइन वर्टिकल प्लेन के तो पैरेलल है बट हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक एंगल बना रही है, मतलब वो एक थोड़ा सा टिल्टेड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। दिया हुआ। अब हमें इसके प्रोजेक्शंस निकालने हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, और हमें इसके डिफरेंट लेंथ्स भी कैलकुलेट करने हैं।
ट्रू लेंथ और एपरेंट लेंथ, और यू कैन से कि वेरिएबल लेंथ जो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शंस। ए बी हमारी लाइन जो कि वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है, तो देखो पैरेलल वाले केस में आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट प्रोजेक्शन मिल जाएगा ए एफ एंड बी। बट ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिससे ये थीटा एंगल बनाते हुए टिल्टेड है, तिरछी है ये लाइन, ये इतना एंगल बना रही है, तो जब आप प्रोजेक्शन लोगे तो लाइन की लेंथ तो कुछ और है बट प्रोजेक्शन तो हमेशा नॉर्मली ड्रॉप होंगे। तो हमारा जो ए एच और बी एच है, राइट, ये आपका ट्रू लेंथ नहीं दिखाएगा बिकॉज ऑफ दिस थीटा एंगल। आप देखो इसमें आंसर में ए एफ बी एफ इज नथिंग बट द ट्रू लेंथ ई एल, बट जब हम इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो आपको लगता है कि ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की दोनों की लेंथ सेम है, नहीं, बिकॉज अब ऑलरेडी लाइन को पहले से ही टिल्ट करके रखा हुआ है थीटा डिग्री, जिसकी वजह से उसका जो टॉप व्यू प्रोजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपको उसकी छोटी लेंथ दिखा रहा है। तो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इस पे? आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक लाइन है which is parallel to vertical plane and inclined to horizontal plane with the angle of 35, और लाइन की लेंथ दे दी जाएगी आपको, लेंथ से 50 mm। अब वो आपसे पूछेंगे कि ठीक है आप इसकी ट्रू लेंथ और इसकी अपरेंट लेंथ कैलकुलेट करके दिखाइए। तो आप कैसे करेंगे? आप इसके प्रोजेक्शन मेथड से करेंगे। Can you see this? Is it clear or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Clear. समझ में आ रहा है कि ये थीटा डिग्री कहां से ले रहा है? थीटा वाला Yes, जो sir. एंगल है वो आपको कैलकुलेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, राइट? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। सेम लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस बार हमारा केस उल्टा हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन की तो पैरेलल है बट वर्टिकल प्लेन से 5 डिग्री बना रहा है। तो अब क्या होगा? हमारा फ्रंट व्यू का जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा, वो हमारा अपरेंट लेंथ हो जाएगा, और जबकि टॉप व्यू में हमें ट्रू लेंथ मिलेगा प्रोजेक्शंस। I tried to represent in the PPT format, मैं इसीलिए, बिकॉज वैसे तो ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला फैक्टर है, आप इसे अपनी कॉपी या डायरी की हेल्प से अगर आप ध्यान से करोगे, जहाँ पे हम मिनी ड्राफ्टर यूज करते थे, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। बट मैंने इसे थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ पीपीटी, ताकि एक बार हमें चीजें देखने का तरीका हमारा क्लियर हो गया ना, देन फिर डिजाइन डिफिकल्ट नहीं। इसीलिए आप लोग सेकंड सेमेस्टर में ये मैकेनिकल ड्राफ्टिंग वाला केस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे फोकस किया जाता है कि आपका इंजीनियर्स की तरह देखने का तरीका चेंज हो जाए, ना कि नॉर्मल लोगों की तरह। नॉर्मल डिजाइनर्स हमेशा बात करते हैं पर्सपेक्टिव व्यू की, कि किसी भी एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा है, उन्होंने देखा और ड्रॉ कर दिया। हम नहीं कर सकते वो, क्योंकि हमारा हर कंपोनेंट बहुत स्पेसिफिक है, तो हमारे पास उसके टेक्निकल मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हमें उसे देखना पड़ता है और उसके डायमेंशंस निकालना है। So I hope this type 4 is also clear to all of you. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. मुझे लग रहा है ये पढ़ा हुआ है क्लास में ना? Yes. फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। ओके, चलो ये बहुत अच्छी बात है। लाइंस और प्लेन Now- तक पढ़ा हुआ है। लाइन और प्लेन्स तक पढ़ा हुआ है। ओके। Now type 5, line parallel to vertical plane but again perpendicular to horizontal plane, just opposite the second case, right? तो जब इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको सिर्फ पॉइंट के प्रोजेक्शन दिखेंगे, जबकि फ्रंट व्यू में आपको ट्रू लेंथ दिखेगी। करेक्ट? सिंपल। Yes. So this Yes, sir. लाइन के केस में यही 5 केसेस हो सकते हैं। Let me go one by one again. एक लाइन जो दोनों ही प्लेन्स के पैरेलल हो, केस नंबर 1। दूसरा, किसी एक प्लेन के पैरेलल हो, दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तीसरा, किसी एक प्लेन के पैरेलल हो और दूसरे से एंगल बना रही हो। फोर्थ, सेम, एक प्लेन से पैरेलल और दूसरे से एंगल। एंड फिफ्थ टाइप, लाइन पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन।
Maximum these 5 cases can happen in terms of lines. तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो फिर लाइन के प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर लोगे आप क्वेश्चन पेपर, अगर ये चीज हमने देखी. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. No problem. So let's move. Shall we go forward? If you have any questions, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो आप बता सकते हैं. Any questions as of now? No, sir. No, sir. कुछ नहीं. No, sir. आपको ये डे 1 एजेंडा दिख रहा है. आई एम नॉट श्योर कि आज हम ये शुरू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं है, हम इसे कल भी कर देंगे, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे. डे 1 हमारा जो एजेंडा होगा, सबसे पहला, जैसे मैंने बताया था क्योंकि ऑलरेडे हम ड्राफ्टिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें उसका यूजर इंटरफेस समझना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का. हमें स्केचेस कैसे बनाने हैं वो समझने पड़ेंगे, डायमेंशंस कैसे लेनी है वो समझने पड़ेगी, और अगर उनकी वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास हैं जिन्हें पैरामीटर्स कहते हैं, वो अगर हमारे पास हैं तो हम पैरामीटर्स कैसे यूज करेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे स्केच. राइट? Sir, Yes. can you please repeat what you said? There was a little bit disturbance. Okay. So you want me to discuss this day 1 agenda? Yes, sir. Okay. See. तो हमारा जो भी अभी हम I'll try कि मैं आपको यूजर इंटरफेस आ जाए एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं. सबसे पहले हमारा जो डिजाइन वाले वर्क स्पेस में आता है, सबसे पहले जब भी आप डिजाइन की बात करते हो तो आपको स्केचिंग बहुत अच्छा आना चाहिए, ताकि आप कैसा भी प्रोफाइल बना पाए. कोई भी मशीन कंपोनेंट, वो कुछ भी हो सकता है, वो इंजन असेंबली हो, वो नट एंड बोल्ट असेंबली हो, एनीथिंग. तो सबसे पहले हमें स्केचिंग हम शुरू करेंगे कि आप 2D स्केच कैसे बनाते हैं, और 2D स्केच बनाते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो कंस्ट्रेंट कहते हैं. स्केच बनाने के बाद अगर हमें उसकी डायमेंशन कंट्रोल करनी है तो हम उसकी डायमेंशन कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे हम डायमेंशंस लेंगे. और सपोज अगर आपको कोई ऐसा पार्ट मिलता है जिसके पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसकी लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, और उसमें फिलेट इतना है, उसमें चैम्फर इतना है, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी आपको दी जाए, तो आप उन पैरामीटर्स को यूज करके स्केच कैसे बनाओ, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. एंड देन वी विल डू सम ऑफ द स्केचिंग एक्सरसाइज. डिफरेंट प्रोफाइल्स हम आपको देंगे ताकि आप उन पे प्रैक्टिस कर पाए. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Azim sir, can you please help me कि हमारे पास कुछ टाइम है, because it's already 2:46, तो मैं यूजर इंटरफेस एक्सप्लेन कर सकता हूँ बच्चों. Sure, sir. Okay. I hope you can see my screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Fusion स्क्रीन दिख रही है, सब लोगों के पास सेम स्क्रीन है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Right. Yes, तो sir. जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्पेशली किसी भी नई टेक्नोलॉजी, ये भी आप लोगों ने ऑटोकैड पे काम किया होगा, अब हम फ्यूजन सीखने जा रहे हैं. तो जब भी टेक्नोलॉजी नए सॉफ्टवेयर या नए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ अवेलेबल है, ताकि हम उसे इफेक्टिवली I'm sorry, there is a
net issue. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा नेटवर्क का ग्लिच था एनीवेज। तो ये स्क्रीन, ये दिस कंप्लीट वाइट एरिया जिसे कहते हैं ड्राइंग एरिया, जहां पे आप अपनी कोई भी डिजाइन बनाते हो। अब आप शुरू करते हैं एक एक करके। जैसे आप देखो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिजाइन आपको करना है, सिमुलेशन करना है और आपको वो सब चीजें करनी है। ये रहा, आप ये देखो डिजाइन, जनरेटिव डिजाइन, रेंडरिंग, एनिमेशन, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्राइंग शीट। आपको जिस भी मॉड्यूल पे काम करना है, आप जस्ट उस पे पुल डाउन पे क्लिक करो एंड यू कैन क्लिक टू दैट मॉड्यूल। सपोज मुझे रेंडरिंग में क्लिक करना है, मैं रेंडर बनाना चाहता हूं, तो यू कैन क्लिक रेंडर। आपने देखा ऊपर, जैसे ही आपने रेंडर मॉड्यूल पे गए, आपके सारे के सारे मॉड्यूल्स ऊपर जो टूल्स हैं वो चेंज हो गए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप जिस भी मॉड्यूल पे काम करना चाहते हो, यहाँ पे आपको उसी मॉड्यूल से रिलेटेड टूल्स मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। ये इसलिए किया गया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आपको मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना है तो आपको केवल मैन्युफैक्चरिंग वाले टूल्स मिलेंगे, आपको डिजाइन पे काम करना है आपको केवल डिजाइन वाले टूल्स मिलेंगे, राइट। ये कहलाते हैं मॉड्यूल्स और ये कहलाते हैं आपके टूल्स। अब ऑन द टॉप ऑफ दिस टूल आप देखो, यहाँ पे 4 टैब्स हैं। सॉलिड, अगर आप सॉलिड कुछ बनाना चाह रहे हो, अगर आप केवल सरफेस डिजाइन करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ सरफेस के टूल्स अवेलेबल है। अगर आप शीट मेटल पे काम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको शीट मेटल के टूल्स अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टूल्स अवेलेबल हैं, वो हम बाद में करेंगे इंस्पेक्शन के लिए कि आप कुछ चीजें चेक करना चाहें। एनीवेज, अभी हम सिर्फ सॉलिड पे फोकस करेंगे, फिर आपको चाहिए तो मैं बाकी की चीजें भी कवर करूंगा। ये हमारा कहलाता है डिफरेंट मॉड्यूल्स। और ये टूल बार्स, टूल बार्स आपके मॉड्यूल पे डिपेंड करते हैं। डिजाइन में सारे के सारे रहेंगे और जैसे ही आप मॉड्यूल चेंज करोगे, उस मॉड्यूल से रिलेटेड जो टूल बार चाहिए वो आपके हाईलाइट है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, यू कैन सी दिस 3x3 डॉट, दिस इज कॉल्ड डेटा पैनल। यहाँ पे सारे के सारे आपके पास, लेट मी गो टू दी डेटा पैनल। सी, मेरी जितनी भी डिजाइन्स पे मैंने काम किया है, सारी की सारी डिजाइन्स मेरी सेव्ड है मेरे डेटा पैनल, और किसी भी टाइम पे मैं कोई भी डिजाइन एक्सेस कर सकता हूँ। आपको अलग अलग डिफरेंट फोल्डर्स, डिफरेंट सिस्टम, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये क्लाउड बेस्ड है। तो आप सपोज एक सिस्टम पे काम कर रहे हो और दूसरे सिस्टम पे अगर आप काम करने जाते हो अपने लॉगिन आईडी से, तो आपको प्रोजेक्ट सारे वहां पे मिलेंगे। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, ये सारे के सारे यहाँ अवेलेबल है, और एट एनी टाइम आई कैन एक्सेस एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोज मैं इसे ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा एंड आई विल ओपन इट। तो ये फाइल मेरे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैं जो भी इस पे मॉडिफिकेशन करना चाहूँ कर सकता हूँ। Can you see it? Yes, sir. डेटा पैनल से मैंने फाइल उठाई और उसका जो भी मॉडिफिकेशन मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ। इस डेटा पैनल का जो बेस्ट यूज है वो कैसे कर सकते हो आप लोग, मैं दिखाता हूँ। आप जब भी, बिकॉज ये नया बैच है तो इट्स इंपॉर्टेंट, आप सारी चीजें माई रिसेंट डेटा में यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जब इसके पहले उस पे पेज पे जाएंगे, आपको यहाँ मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट। एक नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नया प्रोजेक्ट बना लोगे। मैं सब्जेक्ट का नाम डाल देता हूँ, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, एंटर। ये प्रोजेक्ट मैंने बना लिया डेटा पैनल, राइट। अब यहाँ पे मैकेनिकल ड्राफ्टिंग डेटा पैनल पे, यहाँ पे मैं अपनी कोई भी चीज बना के सेव कर सकता हूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट को एक्टिव कर लिया। अब सपोज मैं कुछ बनाता हूँ, लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट ए स्फीयर। ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में कि आप कैसे ये चीजें बना सकते हो, और इसे मैं सेव करता हूँ।
हेलो हेलो Yes, my audible, sir. हाँ सर, कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आपका वॉइस हाँ, बंद हो गया था। थोड़ा सा सर वो डिस्कनेक्ट हुआ इधर। सर टुमारो आपका सेशन होगा? सर आज टुडे इज वेडनेसडे, कैन वी डू इट ऑन फ्राइडे? यस सर, कर सकते हैं फ्राइडे, है ना, एक दिन का थोड़ा सा टाइम देते हैं इन लोगों को एक्सप्लोर करने का। खैर एनीवेज, सो अभी ठीक है, मैं यूजर इंटरफेस अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो हम वहीं से शुरू करेंगे। अभी देखो अभी सर, आप लोग ये जो मीटिंग में एक स्टूडेंट है ठाकर मुनीर, इसने सबको गाइड किया है कल भी इंस्टॉलेशन के लिए, और कुछ जो लोग रिमेनिंग है जिनका रह गया है उनको ये गाइड कर देगा और ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, बस सैटरडे को रखते हैं, सैटरडे बेस्ट रहेगा सर। सैटरडे को किस टाइम पे सर? मतलब फ्राइडे की जगह सैटरडे को। सर सैटरडे फिर मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी आनंद सर से, बिकॉज़ सैटरडे ठीक है, नॉर्मली तो फिर फ्राइडे को रख, फ्राइडे कर फ्राइडे ले को तो रख ज्यादा लो। अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस इसका वीक ऑफ होगा एक हमारा छोटी guys। सर, एक छोटा सा एक्सप्लेन करना था मुझे। ओके ओके, हेलो, राइट, तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर सबसे पहले आप बना लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, फर्स्ट वन इज डेटा एंड सेकंड वन इज पीपल। I can invite all of you in my project folder. Can you see it? Yes, sir. आजिम सर? यस सर। Yes, sir. तो जैसे ही मैं आपको इनविटेशन भेजूंगा, आपके पास एक मेल जाएगा और आप उस प्रोजेक्ट को, आप उस प्रोजेक्ट फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो, आप भी उस डिजाइन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैकेनिकल ड्राफ्ट का, राइट। तो आजिम सर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये प्रोजेक्ट फोल्डर, और फिर आपके पास बच्चों की ईमेल आईडी होंगे, आप सारे बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग एक ही प्रोजेक्ट फोल्डर पे सब अपनी अपनी उसके, और बच्चों का जो होगा बच्चे अपना रीनेम कर लेंगे रोल नंबर वाइज, तो हम इन सब की असाइनमेंट्स वहां चेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आजिम सर, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस सर। यस सर। राइट, आई थिंक, आई डोंट Yes, नो, sir. थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है आजिम सर, तो अभी हमें बंद करना पड़ेगा। आई थिंक फ्राइडे हम सेम टाइम पे मिलेंगे। मीनवाइल आप थोड़ा सा यूजर इंटरफेस सारे बच्चे एक्सप्लोर करना शुरू करो, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट स्केचिंग। हम तब उसके बाद स्केचिंग शुरू करेंगे, ठीक है? Okay. ओके, थैंक यू वेरी मच आजिम सर, Thank you, sir. ओवर टू यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. आजिम सर, आप हैं वहां पे? Yes, sir. हाँ सर, रजीर सर बाहर गए। अच्छा, हेलो। ठीक हाँ है, सर। नो प्रॉब्लम सर। तो जिन लोगों का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है वो कर लें, कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताएं, और आप उसे स्टार्ट करना शुरू करो, एक्सप्लोर करना यूजर इंटरफेस। देन हम स्केचिंग शुरू करेंगे फ्राइडे को सेम टाइम पे। ओके सर, तो हम गाइड कर लेंगे, जिसका सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा उसको अजीम से गाइड कर लेंगे, ठीक है सर? राइट। थैंक Okay, यू, sir. थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, यस। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन लीव नाउ। Yes. बाय सर। बाय। Bye, sir. बाय सर। बाय सर। Sir. ऑन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आजिम सर, फ्राइडे करते हैं सेम टाइम पे, ठीक है? अब स्केचिंग शुरू ठीक है। कर देंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके।